Set number 7 of multiple choice questions. We have first question. A charged particle is in a motion having initial velocity v when it enters into a region of uniform magnetic field perpendicular to v. Because of the magnetic force, the kinetic energy of the particle. So the kinetic energy of the particle does not change. So it will remain unchanged. First option, it will remain unchanged. Now this question is from assignment. Assignment जो PDF है, this question is from that. So it is known to everyone कि assignment के भी MCQs करने हैं. So it will be better if you keep that also doing along with your other question answers. The ratio of emissive power of perfect black body at 1327 degrees Celsius. So 1327 degrees Celsius. So the first temperature is given 1327 degrees Celsius. इसको 273 के साथ add करो. So this will become 1600 Kelvin. And second one is given as 527 degrees Celsius. When you add this with the 273, you get at 800 Kelvin. So emissive power मतलब R is proportional to T का power 4 using Stephen's law. So I can write from here R1 upon R2 equal to T1 upon T2 the whole raised to 4. So what is T1? T1 is 1600. तो इधर आएगा 1600 upon 800 the whole raised to 4. So this is 1 time, this is 2 times. 2 का power 4. 2 को 4 times multiply करना है. 2 का power 4 is 16. So B option 16:1 will be the correct answer. Next 1.3 an electron, proton and alpha particle. ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन. So यहाँ पे longest wavelength. This is the same question which is repeated. Longest wavelength, de Broglie wavelength will be for electron. Why? Lambda is inversely proportional to root of mass and सबसे ज़्यादा सबसे कम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं ना, तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा. सो इलेक्ट्रॉन. 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ फर्स्ट रेडियस इज गिवन 0.3, सेकंड रेडियस इज गिवन 0.6. द रेशियो ऑफ हाइट इन द कैपिलरी. सो कैपिलरी में h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. इफ यू रिमेंबर h इक्वल टू 2t cos theta upon r rho g. 2t cos theta upon r rho g. This is our formula. So what do you see? H is inversely proportional to radius. So I will write h1 upon h2 equal to r2 upon r1. r2 is 0.6 and r1 is 0.3. So this is 1 times 2 times. So 2:1. That is option B. 2 by 1. Next question. We have a parallel plate capacitor is charged and then isolated. This is a textbook MCQ. Electrostatics के textbook MCQs हमने किए हैं lectures में, ठीक है. So this is a textbook MCQ. The plate is capacitor and then isolated. जब भी word isolated आएगा हमेशा याद रखो Q will remain constant. Whenever there is a word isolated, that means the charge is constant. Charge change नहीं होगा, ठीक है. Then the effect of increasing the plate separation. Plate separation मतलब D. If you increase the D, what will happen to charge? What will happen to potential? What will happen to capacitance? ये पता करना है. हमने जब D जो कि प्लेट, 2 कैपेसिटर प्लेट्स होता है ना, राइट. एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D होता है. सो व्हेन यू इंक्रीज दिस D डिस्टेंस, तो चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे क्या होगा? सो एज आई ऑलरेडी मेंशन, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड बोला गया. तो इससे ऑप्शन बी तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इधर इंक्रीजेस बोला है. इंक्रीजेस नहीं होगा, कांस्टेंट होना चाहिए. तो ए, सी एंड डी में कांस्टेंट दिया है. उसके बाद क्या होगा? सी, आई नो दैट सी इक्वल टू क्यू बाई वी. एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है. एंड हमारे पास फॉर्मूला है सी इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. सो इधर बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्यों लिया मैंने सेकंड फॉर्मूला? डी बढ़ा दिया, डी इंक्रीज हो गया. डी इंक्रीज हो गया तो सी क्या होना पड़ेगा? सी कम होना पड़ेगा. सी थर्ड वाला है, सी थर्ड. पहला चार्ज है, हमें लाइन से जाना है. पहले चार्ज आएगा, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा. सो यू सी द ऑप्शन वेरी केयरफुली, ठीक है. यू हैव टू सी द वेरी ऑप्शन वेरी केयरफुली. सो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटर क्या होगा? कम. तो थर्ड वाला डिक्रीज होना चाहिए. तो थर्ड वाला डिक्रीज मतलब ये भी ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन भी कट हो गया. खाली ए और डी में है आंसर, ठीक है. दिस इज हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शन. ये टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेशन का, जो एंट्रेंस के लिए भी हेल्पफुल है. पोटेंशियल के लिए क्या रिलेशन है? सी इक्वल टू क्यू बाई वी, जो यहाँ पे मैंने लिखा है. सो अगर सी मेरा कम हो गया तो वी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. वी शुड इंक्रीज. सो वी शुड इंक्रीज इज देयर इन ऑप्शन डी ओनली. सो डी इज द आंसर. डी इज द आंसर. ए बी एलिमिनेट हो गया यहाँ से. Next, in LCR series circuit, the phase difference between voltage and current when phase is 45, then the power factor is power factor. Power factor का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos phi.
ये भी एमसीक्यू हमने किया है. cos 45 डिग्री, cos 45 इज 1/√2. 1/√2 का मैंने वैल्यू रखना है 0.707 बी ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू वी हैव. नेक्स्ट एमसीक्यू वन. A thin-walled hollow cylinder is rolling down an incline without slipping. At any instant without slipping, the ratio of rotational kinetic energy rotational kinetic energy कितना होता है? rotational kinetic energy कितना होता है? rotational होता है half I omega square. ये rotational होता है. translatory कितना होता है? translatory होता है half m v square. और तीसरा total होता है half m v square 1 plus k square upon r square. ठीक है, ये तीन रेशियोस पता करने हैं. इन तीनों का रेशियो किस चीज के लिए बोला है? फॉर अ थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर. फॉर अ थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें k स्क्वायर अपन r स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन टेक्स्ट बुक. ये सॉल्व किया हुआ है टेक्स्ट बुक में. आंसर विल बी 1:1:2. दैट विल बी आंसर ए, 1:1:2. ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डालो, यहाँ पे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू डाल के सॉल्व करना है. During refrigeration cycle, the heat is rejected by the refrigerant in the condenser. A option, condenser में heat reject होता है. Next, conducting thick copper rod of length 1 meter carries a current of 15 ampere. So length is given 1 meter, current दिया है 15 ampere, is located on the Earth's equator. There the magnetic flux lines of magnetic field are horizontal. With the field of B का वैल्यू दिया है 1.3 into 10⁻⁻⁴ Tesla south to north. The magnitude and direction of the force on the rod when it is oriented so that the current flows from west to east. ठीक है, so थोड़ा डायरेक्शन कंसिडर करके ये क्वेश्चन करना पड़ेगा. सिंस द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पता है नॉर्थ इधर होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है एंड नीचे साउथ होता है. ठीक है, तो करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है. Current is going like this. So when you use right hand rule use करेंगे तो करंट यहाँ पे जाएगा, तो the curled finger will give the direction of magnetic field and accordingly force किस पे एक्ट करेगा? Force will act upward. ठीक है, using right hand rule if you see the force will act upward. तो upward कौन से ऑप्शन में है? C and D में है. ठीक है, ए एंड बी में तो नहीं है, तो सी एंड डी में से कोई तो आंसर होगा. अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला, लॉरेंस फोर्स बोला है क्वेश्चन में, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? F = I/L/B. सो F विल बी इक्वल टू I का वैल्यू कितना बोला है? 15. I का वैल्यू 15 है, L का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू है 1.3 into 10⁻⁻⁴. So on solving this you will get nearly 19.5 into 10⁻⁻⁴. तो nearly 19.5 का D ऑप्शन है, 20 into 10⁻⁻⁴. ठीक है, that is option D with upward direction. And one last MCQ in the spectrum of hydrogen spectrum, ये भी हमने पढ़ा है. longest wavelength E = hc by lambda. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा अगर ग्रेटर चाहिए तो एनर्जी क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा. एनर्जी सबसे कम उस लेवल का होता है जो सबसे ऊपर रहेगा. जितना ज्यादा ऊपर लेवल रहेगा उतना उसका एनर्जी कम. इफ यू रिकॉल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हमने ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ किए थे, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट. तो इधर n = 1 था, n = 2, n = infinity. और एनर्जी याद करो तो इधर था 13.6, देन था 3.54, देन 1.5. एज द एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होता है? कम होता है. सो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा. तो सबसे बड़ा ऑर्बिट ऑप्शन में क्या दिया है? 8 to 7. सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 8 to 7.